Hello and welcome back to your favorite spoken English channel, Business Spoken English. Who doesn't want to be fluent? Who doesn't want its communication skill at least to be at peak? Everyone does. But do you know that from these 50 tips, you can actually transform the way how you speak? You can actually transform the process that you're following. See, every language takes time in order to learn, but this time can be reduced if you'll follow the strategic decisions, that too with precise effort, that combinately will transform the way how you learn a particular language. Language is nothing other than those 4 actions: reading, writing, listening, speaking. Reading, writing, listening, speaking. All of these 4 actions can be learned very easily if you'll follow these particular steps. Let's get started. Alright, so let's get started. The first point is, it takes time in order to learn a language, therefore be patient as this time-taking process. See, if you prepare, let's say, Maggi, okay, and Maggi takes, people say 2 minutes, but we all know the actual particular time. Imagine you just put Maggi in boiling water and after 2 minutes, you just put it out. Will you get your Maggi? Not at all, because it takes an amount of time in order to get from this process. If you just enhance the flame, it will not cook it quickly. Instead, it will destroy it. It will make it not edible. So it takes a particular time in order to learn a language. So don't make yourself hurry. Don't feel that you've just practiced for 4 days and don't see that change inside you. ऐसा नहीं होता. It takes an amount of process, और वो process आपको गुजरना ही होगा, उतना time देना ही होगा in order to learn it. ये जल्दी चीजें करने से बहुत जल्दी काम नहीं हो जाएगा. It will take that amount. तो एकदम patiently अपने आप निश्चिंत रहिए कि ठीक है, it will take time, but जब ये complete हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगने वाला है. I'm gonna enjoy that process. तो एक बार ये complete हो जाए उसके बाद. Next it says you need to practice not just by reading and listening but as speaking as well. So often we start reading books, we start listening to several podcasts, लेकिन हम बोलते नहीं हैं. ये हमारी actual जो main प्रॉब्लम है, वी कैन से कि स्पीकिंग इज द मेन इशू. क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पुट करते हो और इसके लिए माइंड पहले से प्रिपेयर करता है. देखो, अगर अपने आप को ज़्यादा प्रॉब्लम से पुट करो ना तो माइंड एफर्ट करता है कि मुझे अगली बार वो प्रॉब्लम अगर आता है ना, मुझे पहले खुद को सेव करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा. लेकिन अगर आप कहीं बोलते ही नहीं हो तो आपका माइंड बहुत ही रिलैक्सड रहेगा, बहुत ही काम कूल रहेगा. इसको कोई मतलब ही नहीं है. इमेजिन करो, आप जिस टाइम लोगों से बात करते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा आपको डर लगता है. वो डर लगना बंद हो जाएगा अगर आपने 4 से 5 बार लोगों से इंग्लिश में बात किया और आपने मिस्टेक की. आपको बुरा लगेगा, आपका माइंड इसको ऑब्जर्व करेगा और पहले ही इसके बारे में प्रैक्टिसेस करेगा, पहले ही ओवर थिंकिंग करेगा, पहले इसके बारे में प्रैक्टिस करेगा. क्या सेंटेंसेस बहुत अच्छा होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा. कई बार जिन सिचुएशंस में हम अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं, उन सिचुएशंस में हम देखते हैं कि हमारा माइंड और अच्छे डिसीजंस लेके आता है. जैसे इमेजिन कीजिए दैट यू आर स्मॉल 5-year-old, लेट्स से 10-year-old चाइल्ड, और आपको आपकी टीचर ले जा रही है प्रिंसिपल मैम के पास. तो आप अच्छे से पहले सोच ही जाओगे मुझे क्या बहाना बनाना है, मैंने होमवर्क तो नहीं किया, लेकिन क्या मैं बोलूं जिससे मैं बच जाऊं. आपका माइंड उस पर प्रेशर डालता है. सेम हैपेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. जब आप खुद को अनकंफर्टेबल पोजीशन में पुट करते हो, आपका माइंड बहुत मेहनत करता है उससे निकलने के लिए, और इसी प्रोसेस के थ्रू आप जल्दी सीख भी जाते हो. Alright, next it says, in order to learn native language speaking, you should have friends who speak like so you learn from them. अब अगर आप your network is your net worth. आपने ये बात सुना होगा, and it truly applies especially in this part. जब आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखते हो जो पहले से ही बोल रहे हो या फिर बोलने की ख्वाहिश रखते हो, पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हो. Why? Because you have that particular community along with you, जो आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए वहाँ खड़े हैं. फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएंगे बट वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एक्चुअल किसी प्रोफेशनल एस्पेक्ट में आपका जो मजाक उड़ेगा वो आपको बुरा लगेगा. तो stay with your friends or then practice. Do not shy when you make mistakes. Other can help you to improve. कई बार मिस्टेक जब होता है तो आपको इसे प्राउड फील करना चाहिए कि एटलीस्ट यू ट्राइड समथिंग न्यू. मिस्टेक इज द प्रूफ दैट यू ट्राइड समथिंग न्यू. तो उस टाइम पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए. प्रैक्टिस स्पीकिंग whenever you get a chance. Several times when you get an opportunity you should start speaking. जैसे let's say आपकी फ्रेंड इंग्लिश में बात कर रहे हो, स्टार्टिंग करो हिंदी में कि सर मैं बोल रहा था ना कि वी शुड चेंज द प्लान. अगर आप हिंदी में स्टार्ट करो ना फिर इंग्लिश पे आओ तो आपको देखोगे चीज़ें बहुत क्विकली
रैपिडली चेंज हो जाएगी. सो एट बिगनिंग अगर आपको डर लग रहा है इंग्लिश बोलने में, पहले आप हिंदी के सेंटेंस बोलो, स्टार्टर हिंदी रखो ताकि आपका माइंड तुरंत नर्वस ना हो जाए. अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश से स्टार्ट करोगे ना, आपका माइंड पहले से डर जाएगा एंड विल स्टे अवे, विल ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन. इट ऑल्सो सेज दैट प्रैक्टिस स्पीकिंग व्हेनेवर यू गेट अ चांस. हाँ, अभी डिस्कस कर लिया सर. एट फर्स्ट यूज सिंपल सेंटेंसेस एंड देन ट्राई टू मूव ऑन द कॉम्प्लेक्स वंस. अगर आपने स्टार्टिंग में ही कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यू नो एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस, ये सीखना स्टार्ट कर दिया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप बोर हो जाओगे. आप ये प्रोसेस ही छोड़ दोगे, ये लर्निंग का प्रोसेस ही हटा दोगे. लेकिन इससे पहले आप क्या करना चाहिए, दैट यू शुड लर्न द सिंपल सेंटेंसेस. लाइक आई वाज थिंकिंग ऑफ इट, लेकिन नहीं हो पा रहा है. मतलब अगर आपको दो सेंटेंसेस इंटीग्रेट करने हैं तो एक हिंदी का रख लो और एक इंग्लिश का. अगर आप दोनों इंग्लिश में सोचने की कोशिश करोगे, योर माइंड विल ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट पोजीशन और आप हमेशा या तो मिस्टेक करोगे या आप बोलोगे ही नहीं. तो अच्छा है स्टार्टिंग में एक हिंदी का स्टार्टर रखो, फिर इंग्लिश रखो और यूजुअली ट्राई करो कि सिंपल सेंटेंसेस हो. अगर दो सेंटेंसेस हैं तो अलग अलग रखो ना भाई. सिंपल सा है, एक सेंटेंस बोल के फिर दूसरा सेंटेंस बनाते हैं. अगर आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, आप मिस कर दोगे. ओके, द राइट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कैन हेल्प यू एक्सेलरेट द प्रोसेस. हाँ, ये आप खुद से सीख सकते हो, लेकिन अगर आपने इंग्लिश स्पोकिंग इंग्लिश का कोर्स ले लिया तो आपको बहुत अच्छा हेल्प कर देगा. और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बहुत चीप प्राइसेस में, 9 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये के भी कोर्सेज होते हैं. दैट दे हैव देयर रिकॉर्डेड वीडियो, आप उसे चेक कर सकते हो. बहुत ही अच्छा होता है वो सब भी. दे कैन टीच यू. देखिए, वो ये नहीं बताएगा दैट व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट आर टेंसेस, व्हाट आर कंजंक्शन, बट वो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बता देंगे ना जिससे आप क्विक रैपिड ग्रो करोगे. Try to improve your pronunciation. See, pronunciation is a particular aspect of your communication. जब आप बोलते हो और किसी ने एक वर्ड को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया और आपने उसे मिस प्रोनाउंस किया, तो आपका जो, अगर वो वर्ड दोबारा किसी ने सही प्रोनाउंस किया ना, तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है इस पे. और हो सकता है पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट यू एज वेल, क्योंकि आपने उसको कुछ अलग तरीके से बोला था. तो we should look at that. कई बार when we say a particular word in a different way and people say it in a different way, that creates misconception about other people as well कि भाई ये सही वाला कौन सा है, इन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला है. ये भी हो जाता है प्रॉब्लम. So we should see to it. Do not give up one answers while at the beginning. कभी भी आपसे कुछ पूछा जाता है, never answer in one word, क्योंकि एक बार जब आप आंसर एक वर्ड में कर दोगे, then your mind will relax itself. ये सब यहीं का है, सब कुछ यहीं का है. You don't do anything. You're nowhere. You're just here. ये सब आपको यही डराने वाला है. तो एक वर्ड में आंसर ही मत दो. इसको जितना हो सके अनकंफर्टेबल पोजिशंस में पुट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको दे सके. ट्राई टू स्पीक लॉन्ग सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. अगर आपको पहले से दिख रहा है कि आपने एक रैपिड चेंज अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, आप ठीक ठाक बोलने लगे हो, अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस प्रोवाइड करो. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं मिल रहे हैं, बुक लो, बुक में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखो, जब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो उन सेंटेंसेस को यूज करो. ये हेल्प करेगा आपको. लर्न, ट्राई टू इंप्रूव योर मिस्टेक. कई बार आपने मिस्टेक किया तो ऐसा नहीं है कि जब भूल जाना है. लुक कि आपने कहा मिस्टेक किया है और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करें. लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज म्यूजिक. बहुत सारे इंग्लिश म्यूजिक्स हैं, जैसे सफायर अभी लेटेस्ट आया है, तो ऐसे ही एड शेरिन, एलन वॉकर और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब शकीरा. देयर आर मिलियंस ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो. दे विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू लर्न क्विकली, क्योंकि उसमें स्लैंग्स होते हैं, उसमें लेटेस्ट वर्ड्स होते हैं, उसमें ऑनगोइंग ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको सीखने को मिलेगा. ट्राई टू स्पीक इन पब्लिक. अगर आप अकेले ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इट विल नॉट गिव यू द रियल एस्पेक्ट, इट विल नॉट गिव यू द एक्चुअल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पीकिंग. अगर आप लोगों के सामने बोलोगे तो आपको रियल पर्सपेक्टिव मिलेगा. लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको थोड़ा डर लगेगा, आप और अच्छे से बोलोगे क्योंकि आपको एक इंप्रेशन बनाना है, तो आप और अच्छे से बोलोगे. Try to spend as much time as you can at a place where English spoken. अगर आप ज़्यादा देख रहे हो कि कहीं इंग्लिश बोली जा रही है, stay in that group. Try to learn every sentence that's being spoken. Try to utter the same statements that was said. In order to improve your speaking skill, try to become a part of conversation group. बहुत सारे ऐसे applications हैं with the help of which आप बहुत जल्दी speaking सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ भी लोग practice कर रहे हैं spoken English. बहुत सारे, और सबसे अच्छा free application है Waki. I repeat, WAKIE. Okay, so in order to improve your skills, try to become part of conversation. ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया सर. रीड अलाउड योर फेवरेट बुक्स. जब आप लाउड बोलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी इन्हांस होता है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से इंटरप्रेट करते हो और आपकी सबसे पहली जो प्रोनाउंसिएशन स्किल है वो इंप्रूव होती है. वॉच पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग्स ऑनलाइन. मैंने अभी पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया. ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश इन योर माइंड. जब भी आप कुछ बात कर रहे होते हो इन योर ओन माइंड, लाइक टुडे आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन टुमारो आई आल्सो हैव टू विजिट द मार्केट एंड देन फ्रॉम मार्केट आई हैव टू गेट सम वेजिटेबल्स बिकॉज एट होम इट्स नॉट देयर
what else I'm also supposed to complete my homework by the evening, and then I'll also meet some of my friends. We'll play badminton, maybe, I don't know. ये सब आप अगर माइंड में डिस्कस करोगे ना तो धीरे धीरे आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा इंग्लिश में. ट्राई पैराफ्रेजिंग व्हाट यू हियर, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प. जब आप किसी सेंटेंस को सुनते हो और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लग रहा है, अब उस पर्टिकुलर सेंटेंस की प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट कर दो. दिस विल हेल्प यू. ट्राई टू कनेक्ट विद अदर्स इन इंग्लिश. जब भी देख रहे हो कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो उससे डरना नहीं है, उसके पास जाना है, उसके साथ रहना है, उससे सीखना है. ओके, क्रिएट योर ओन रिस्पॉन्सेज इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग व्हाट अदर्स से. अगर आपने देखा है कि गुड मॉर्निंग का सिर्फ गुड मॉर्निंग लोग बोलते हैं, डोंट स्पीक द सेम थिंग. आप अपने इसे पैराफ्रेज करो, चेंज करो अपने तरीके से कि हे फैंटाबुलस मॉर्निंग. हाँ, ऑब्वियस है बॉस के साथ ऐसा नहीं बोलना है. ओके, बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक. अब कई बार बोलते टाइम आपको डर लगता होगा, बट एक्टिंग ही मत करो डरने की. आप ऐसे एक्ट करो जैसे यू आर अ मूवी लेट्स से कैरेक्टर, तो आपको डर नहीं लगेगा. आप बोलो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. ओके, बी अटेंटिव इन लिसनिंग. अब सुनने में आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा बोलोगे, क्योंकि ये सेंसेस का काम है सर. द मोर योर सेंसेस फील इंग्लिश, द मोर यू विल स्पीक. Okay, to have a better quality speaking skill, use phrasal verb instead of regular verbs. आपने देखा होगा कि I'm postponing this meeting. इससे अच्छा होता है I'm putting it off. Okay? या hey, save yourself. इससे अच्छा होता है watch out. ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है. क्यों? क्योंकि save yourself will not make that impact. जो watch out बोल watch out, तो ये एक impact बनाता है. तो जब आप phrasal verbs use करते हो ना, तो एक्चुअली स्पीकिंग इंग्लिश की फील आती है. ओके, बी एंथुसियास्टिक अबाउट लर्निंग इंग्लिश. अगर आप इसको बोरिंग पाते हो, देन यू विल फील कि वो मज़ा नहीं आ रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है. हैव सम एंथुसियाज्म, हैव सम एनर्जी इनसाइड यू. ओके, लर्न फ्रॉम एवरीवन, बी इट यंग और ओल्ड. कोई किसी ने मिस्टेक किया, उस पर हंस नहीं देना है, उस पर इंजॉय करना और समझना है कि वो मिस्टेक आप नहीं करना, आपको नहीं करना. किसी ने नया वर्ड यूज़ किया तो आप उस वर्ड को दिन भर में 5 बार यूज़ करो, ताकि आप भी वो नया वर्ड कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे यूज़ कर सको. You can listen to your favorite personality and also improve your language. बहुत सारे इंग्लिश के बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे इंटरनेशनल में. अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है, आप सर्च करो उनके बारे में. ट्राई टू फॉलो देयर लेट्स से पॉडकास्ट, देयर इंटरव्यूज और एनीथिंग लाइक दैट. फोकस नॉट ओनली ऑन स्पीकिंग बट ग्रामर एंड वोकैबुलरी एज वेल. स्पीकिंग तो एक पार्ट है, लेकिन ग्रामर और वोकैबुलरी वो सेंटेंस का फ्रेगमेंट है, वो स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर आपने एक बार याद कर लिया ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट याद करने नहीं बोल रहा हूँ. स्ट्रक्चर मीन्स पहले से ही स्पोकन स्टेटमेंट्स, मतलब आई एम गोइंग, यू आर ईटिंग, शी इज डांसिंग. ये स्ट्रक्चर है. आपने इसको अगर प्रैक्टिस किया, इसके जैसे स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस किए, तो जिस टाइम पे आपको ऐसा स्टेटमेंट बनाना होगा ना, आप तुरंत बना लोगे, क्योंकि आपको हैबिट हो चुकी है. That's it. That's all. Thank you.